Hello, everyone. Welcome to another session on editorial analysis. अब last दो sessions में आप लोगों का experience क्या रहा? Whether you see improvement coming in or you still see that the problem persists, do let me know in the feedback. And आज का जो हमारा editorial है, it will be no different than what it was in the last year. I mean, what it was in the last week. So, editorial is Free Man on the release of Julian Assange. आज सैटरडे है एंड ये 26th of June का एडिटोरियल है, सो 2 दिन पहले का ही एडिटोरियल है। आप लोगों ने भी सुना होगा that Julian Assange finally entered into a plea agreement with the US government where he would plead guilty, and the government is expected to give him a 5-year sentence, the time that he has already spent in British jails. So he's expected to walk free after this conviction, right? तो अब देखिए यहां पर जैसा लास्ट वीक मैंने फ्लॉ एंड पैराडॉक्स डिस्कस किया था, बट देन सम स्टूडेंट सेड कि उनको स्ट्रेंथन के क्वेश्चंस, वीकन के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं। तो मैंने इस बार क्या किया, मेन आइडिया, इन्फरेंस, अजम्पशन, अजम्पशन के बाद नेक्स्ट वाज स्ट्रेंथन, एंड इसके साथ मैंने पैराडॉक्स रख दिया ताकि स्ट्रेंथन के क्वेश्चंस जो है वो मिस ना हो। एंड ये स्टूडेंट्स में बिल्कुल सही है कि स्ट्रेंथन के क्वेश्चंस या वीकेंड के क्वेश्चंस प्रोमिनेंटली आते रहते हैं, तो उनको मिस ना करें। तो इसीलिए मैंने इन 5 क्वेश्चंस को आज यहाँ पे आप लोगों के लिए रखा है। सो हम लोग कैसे जाएंगे इस सेशन के साथ? the same. We went ahead with the session last week. वैसा ही होगा. We will discuss the passage. We will discuss the key ideas. Try and understand author क्या बोल रहा है. And then one by one we will discuss answers to these questions. ठीक है? So without wasting much time, आगे बढ़ते हैं. तो ये रहा आपके सामने passage. अब जैसा कन्वेंशन है, मैंने पैसेज में आइडियाज को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। आप लोग भी कुछ इसी तरीके से जब न्यूज़पेपर उठाते हैं, एवरी 5 to 6 लाइंस जहां पर भी आपको फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है, वहां तक का आप एक की आइडिया बना सकते हैं। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। लुक, तो ये मैंने आइडियाज को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। फॉर योर कन्वीनियंस मैंने हाईलाइट भी कर दिया। तो पहले क्या बोल रहा है? Julian Assange did what journalists do in free society. He published troves of secret documents exposing the conduct of American wars in Afghanistan and Iraq and of its diplomacy. जुलियन असांज ने वही किया जो जर्नलिस्ट फ्री सोसाइटी में करते हैं। उसने यूएस के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश किया, एंड फॉर दैट ही वाज डिनाइड हिज फ्रीडम फॉर मोर देन 14 years. The hounding of Mr. Assange is a rare modern story of Western democracies across Atlantic working hand in hand to punish a journalist, publisher, and a whistleblower. ठीक है, तो देखिए की आइडियाज का क्या है। Assange was harassed for 14 years for doing what journalists normally do in a free society. It is surprising. उसने बोला ना, it's a rare story. ये एक rare story है जहां पे democracies across the Atlantic are working hand in hand. So it is surprising as those who profess to be the guards of democracy are crushing democracy. ठीक है, जर्नलिस्ट को पनिश कर रहे हैं सब लोग मिलके। आगे वो क्या समझा रहा है? The WikiLeaks founder was first arrested in Britain in 2010 on European warrant over sex crime allegations reported in Sweden. So, first time he was arrested was in 2010, and later the charges were dropped. While on bail, he took asylum in Ecuador Embassy in London, where he was holed up until 2019. उसने वो वाले चार्जेस से उसके ऊपर ड्रॉप हो गए थे, फिर वो बेल पे था, एंड उसने इक्वेडोर एम्बेसी लंदन में असाइलम ले लिया टिल 2019। उसके बाद he was kicked out and he was rearrested by Britain. He was sent to prison for 5 years, जहां पे he entered into a plea agreement with the US government, after which he would be allowed to walk free, right? So देखो इसके key ideas क्या हैं। After the Ecuador embassy showed him doors where he took asylum till 2019, he was rearrested by British police and sent to prison for 5 years. Now he has struck a plea agreement with the US government that would set him free. ठीक है, बोल रहा है the 52-year-old will plead guilty in the espionage case against him, or before a federal judge in Saipan. According to the US and British media, Mr. Assange is expected to be sentenced for about 5 years. And ये टाइम वो ऑलरेडी ब्रिटेन में जेल में स्पेंड कर चुका है, सो ही वुड बी अलाउड टू वॉक फ्री। ठीक है, तो इसका की आइडिया केवल इतना सा है दैट Assange will plead guilty and he would get sentence of about 5 years.
the time he has already spent in British prison. So he would be allowed to walk free. अब देखिए, यहां तक तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी, मतलब ऑथर वाज सेटिंग द टोन फॉर हिज आर्गुमेंट, ठीक है? एक्चुअल आर्गुमेंट अब बिगिन हो रहा है. So it's a classic example where first half is dedicated to background information and author begins his argument in the first part of the second half. So a classic example, a classic passage. While Mr. Assange's release, which brings his year-long ordeal to an end and is a reprieve for those who have been fighting for him, is a welcome news, the road to this day was not smooth. The way he is being released still raises concerns. यहाँ से author का argument चालू हो गया कि भाई it's a good thing. देखो, यही तो बोल रहा है कि it's a good thing कि Assange is being released, but the way this is being done वो concerning है. So यही मैंने यहाँ पर भी लिखा. Next क्या बोल रहा है? The classified documents जो उसको दिए गए थे that were handed to him by Chelsea Manning was released in 2017 क्योंकि President Barack Obama commuted her sentence. मतलब उसके सेंटेंस को उसने कम कर दिया था and she was set free in 2017. But Mr. Assange remained unfree and he's still fighting doggedly for his freedom. तो यही तो है. The classified documents he published were handed to him by Chelsea Manning, whose sentence was commuted, and she was set free in 2017, while Mr. Assange fought doggedly against his extradition orders. ठीक है? So की आइडियाज को चाहे तो आप और भी छोटा कर सकते हैं कि Chelsea Manning, who handed him the documents, got free in 2017, while Mr. Assange is still fighting for his freedom. So this is what author is trying to say. Last year, Australia's Labour Prime Minister Anthony Albanese urged the US to conclude the case, while the lawmakers passed a resolution asking for Assange's return to Australia or return home. In recent years, the case has also become a public relations disaster for Joe Biden's Democratic administration. तो यहाँ पे यही कहना चाहता है कि ऑस्ट्रेलियन लॉ मेकर्स ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया फॉर रिटर्न ऑफ मिस्टर असांज टू ऑस्ट्रेलिया एंड मोर ओवर ये केस जो है वो बिडेन के लिए भी एक डिजास्टर बन चुका है. ठीक है? एंड टुवर्ड्स द एंड ऑथर यही बोल रहा है, सो व्हेन मिस्टर असांज अग्रीड टू प्लीड गिल्टी, जब उसने गिल्टी प्लीड करने के लिए माना, इट सर्व्ड ऑल द पार्टीज. यूएस को कन्विक्शन दिलाना था तो यूएस ने कन्विक्शन दिला दिया, असांज को फ्री होना था तो वो फ्री हो रहा है, बट इट्स अ सेटबैक फॉर फ्री स्पीच. ठीक है? And the pursuit of whistleblower for over 14 years would remain a blot on Western democracies, especially the UK and the US. So last में यही बोल रहा है, although the new deal will serve all the parties involved, it is a setback for the free speech and it will be a blot on the US and UK forever. ठीक है? This is what the author's argument is. So key ideas देख लीजिए, ये रहे आपके सामने कि असांज ने एक गिल्टी प्लीड करने के लिए अग्रीमेंट साइन कर लिया यूएस के साथ. ही इज एक्सपेक्टेड टू गेट सेंटेंस ऑफ 5 years, which the time that he has already spent in British prisons. After this, he is expected to walk free. But the way this is being done is concerning because it's a setback for free speech, and it'll be blot on Western democracies who profess to be the guards of democracy. It'll be a blot, especially on the UK and the US. ये ऑथर के आर्ग्यूमेंट्स हैं. ठीक है? तो यहां से मेन आइडिया तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि मेन आइडिया क्या होने वाला है. सो फर्स्ट मेन आइडिया डिस्कस कर लेते हैं. Julian Assange's release after plea deal with the US government raises concerns about free speech. Julian Assange का जो plea deal है with the US government, it raises concerns about the free speech and the actions of Western democracies, particularly the US and the UK. So I hope आपको ये समझ में आया. क्यों? क्योंकि it was a setback for the free speech. I hope this is clear. So आपने ये पॉइंट्स भी जितने मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो उससे आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे कि मेन आइडिया यही है. ठीक है? नेक्स्ट इन्फरेंस देखते हैं. अब inference is something that we logically derive from the passage. ठीक है? The handling of Julian Assange's case has likely damaged the reputations of the US and the UK in terms of their commitment to free speech. तभी तो ऑथर ऐसा बोल रहा है. तो उसी के बेसिस पे हमने ये इन्फ्रेंस लिया कि इट हैज लाइकली. देखिए, मैं इसको है ना एब्सोल्यूट नहीं रख सकता था, क्योंकि एब्सोल्यूट अगर मैं ये लाइकली हटा देता तो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट हो जाता एंड फिर इसके इन्फ्रेंस होने की गुंजाइश थोड़ी सी कम हो जाती. सो लाइकवाइज जब आप पैसेज में भी इन्फ्रेंसेस ढूंढते हैं, लुक फॉर स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट वेरी एब्सोल्यूट बिकॉज दोज आर लाइकली नॉट योर आंसर्स. ठीक है?
इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दीज थिंग्स मैंने इसीलिए आपको बताया कि मैंने स्टेटमेंट में लाइकली डाला है, सो दैट इट बिकम्स मॉडरेट एंड इन्फ्लुएंस होने की पॉसिबिलिटी जो है उससे बढ़ जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया। एनीवे सो इसके अलावा अगर आपको और कोई इन्फ्रेंस समझ में आता है, आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज जो मैंने अभी आपको इन्फ्रेंस वाली बात बताई, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स ये बात आपको कैसी लगी। एंड इफ यू लाइक द if you like this video, please hit the like button as well and subscribe to our channel. Next, assumption. अब देखिए assumption, रिमेंबर फर्स्ट पैराग्राफ में या फिर फर्स्ट की आइडिया में हमने ये पढ़ा था कि जूलियन असांज ने वही तो किया जो जर्नलिस्ट फ्री सोसाइटी में करते रहते हैं, उसके लिए वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई। तो वहीं से एक असम्पशन आया ना, पब्लिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स pertaining to conduction of war and diplomacy of a country is not a violation of rules in a democracy। तभी तो ऑथर ने ये बोला, नहीं तो ऑथर फिर ये बात बोलता ही नहीं ना। सो इस पूरे आर्ग्यूमेंट के पीछे जो सबसे बड़ा अजम्पशन ये है कि जिसमें फ्री स्पीच, हम लोग कह रहे हैं कि फ्री स्पीच के लिए सेटबैक है, तो अजम्पशन क्या है कि जूलियन असांज ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो डेमोक्रेसी की वैल्यूज को वायलेट करे। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स that pertain to conduction of war and diplomacy of a country is not violation of rules in a democracy। So अगर ये assumption नहीं होगा तो ultimately author का जो argument है वो भी hold नहीं करेगा। So this is the assumption। There are two more assumptions that I know। You let me know in the comments box कि क्या वो assumption आपके दिमाग में आ रहे हैं। Strengthen, there was no reason to implicate Julian Assange if he had not published classified documents। अब देखिए, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की अगर बात नहीं होती तो फिर उसको पनिशमेंट मिलता ही नहीं। दैट मीन्स मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इसको इंटरप्रेट करेंगे तो ये बोल रहा है कि इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जूलियन असांज ने अपनी लाइफ में कुछ गलत किया ही नहीं है जिसके लिए उसको पनिशमेंट मिले। क्योंकि इसको वीकन में ये बोल के कर सकता था कि जूलियन असांज ने और भी बहुत सारे गलत काम किए हैं। ठीक है, तो मैंने जो एक पोटेंशियल वीकनर हो सकता था जो आर्ग्यूमेंट को वीकन करे, मैं उसी को ही निगेट कर देता हूं। दैट मींस इसके अलावा जूलियन असांज ने कोई गलत काम नहीं किया। दिस एक्चुअली प्रूव्स दैट वेस्टर्न डेमोक्रेसीज आर वर्किंग इन टैंडम टू हरास और हैरी जूलियन असांज। ठीक है, सो ये पॉइंट जो है वो स्ट्रेंथन करेगा। पैराडॉक्स, अब देखिए यहाँ पे पैराडॉक्स क्या था, आपने अगर फर्स्ट की आइडिया पढ़ा होता तो उसमें बोल रखा है कि दोज हु आर द गार्ड्स ऑफ or those who profess to be the guards of democracy, वहां पे लिखा हुआ था ना, western countries take pride in their freedoms yet they are trying to harass a journalist for doing his normal job। So western democracies that take pride in their freedoms are the ones that try to curb the freedom of Julian Assange through their acts। ठीक है, क्योंकि 14 years तक उसको चेस किया, तो ये एक पैराडॉक्स है। देखिए इस पैसेज में इसके अलावा कोई पैराडॉक्स नहीं है, दिस इज फॉर श्योर, इसके अलावा कोई पैराडॉक्स नहीं है। सो आप पैराडॉक्स पे मेहनत मत कीजिएगा। हाँ, वीकन जरूर निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर पैसेज पे कि वीकन क्या हो सकता है, कैसे हम लोग ऑथर के आर्ग्यूमेंट्स को वीकन करें। दैट इज वेरी सिंपल एंड आप सब लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। एंड वन थिंग दैट आई एम श्योर अबाउट इज अधिकतर लोगों का आंसर जो है वो सेम रहने वाला है, बिकॉज वीकन करना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, सो आज मेरी तरफ से इतना ही। डू लेट मी नो कैसा लगा ये सेशन एंड आप कितना इंप्रूव कर पाए हैं। इफ यू लाइक द सेशन, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। यू ऑल हैव अ वंडरफुल वीकेंड अहेड। थैंक यू।